مائیکل فیراڈے ایک مشہور انگلش سائنٹسٹ تھے۔ پیارے بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ مائیکل فیراڈے فادر آف الیکٹریسٹی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، کیونکہ مائیکل فیراڈے نے الیکٹرو میگنیٹزم کا اصول دریافت کیا۔ مائیکل فیراڈے نے پہلی الیکٹرک موٹر ایجاد کی اور پہلا الیکٹرک جنریٹر بنایا۔ اسٹوڈنٹ لرننگ آبجیکٹیوز۔ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے نمبر 1 اسینڈنگ آرڈر یعنی صعودی ترتیب، نمبر 2 ڈسینڈنگ آرڈر یعنی نزولی ترتیب، نمبر 3 ایون نمبرز یعنی جفت اعداد، نمبر 4 آڈ نمبرز یعنی طاق اعداد، نمبر 5 ایکسرسائز یعنی مشق۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم کلاس 3 کی میتھمیٹکس کے چیپٹر نمبر 1 نمبرز کے ٹاپک کمپیئرنگ نمبرز یعنی اعداد کا موازنہ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ آئیے اعداد کا موازنہ کرنا سیکھنے کے لیے ایک اینیمیٹڈ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ جب آپ اعداد کا موازنہ اور ان کی ترتیب کرتے ہیں تو آپ لیس دین یعنی چھوٹا، گریٹر دین یعنی بڑا اور ایکول یعنی برابر الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ اعداد کا موازنہ کرنے کے لیے پہلے ہر نمبر میں ہندسوں کی تعداد دیکھیں، اس کے بعد اعداد کی مقامی قیمت کو ایک ہی ہندسے کے ساتھ موازنہ کریں۔ جب اعداد کا موازنہ کرتے ہیں تو ہم پہلے ان ہندسوں کا موازنہ کرتے ہیں جن کی مقامی قیمت سب سے بڑی ہوتی ہے۔ جس عدد کے ہندسے کی مقامی قیمت سب سے بڑی ہوتی ہے وہ بڑا عدد ہوتا ہے۔ مگرمچھ کا بند منہ چھوٹے عدد کی نشاندہی کرتا ہے، مگرمچھ کا کھلا منہ بڑے عدد کی نشاندہی کرتا ہے۔ آئیے اب مزید ایک اینیمیٹڈ ویڈیو دیکھتے ہیں جس سے آپ کا کانسیپٹ مزید بہتر ہو جائے گا۔ Comparing numbers within 10۔ پھولوں اور تتلیوں کی تعداد کا کمپیریزن کریں۔ چلیے تتلیوں کو گنتے ہیں، 1 2 3 4 5۔ یہاں 5 تتلیاں ہیں۔ چلیے پھولوں کو گنتے ہیں، 1 2 3 4 اور 5۔ یہاں پر 5 پھول ہیں، 5 برابر ہے 5 کے، یہاں پھولوں اور تتلیوں کی تعداد برابر ہے۔ اب میں تتلیوں اور پھولوں کا موازنہ کروں گی۔ چلیے تتلیوں کو گنتے ہیں، 1 2 3 4 5 اور 6۔ یہاں پر 6 تتلیاں ہیں۔ چلیے پھولوں کو گنتے ہیں، 1 2 3 4 5۔ یہاں 5 پھول ہیں۔ یہاں تتلیاں پھولوں سے زیادہ ہیں، 6 5 سے 1 گنا بڑا ہے، یہاں پر 1 تتلی زیادہ ہے۔ تتلیوں اور پھولوں کی تعداد کا موازنہ کریں۔ چلیے تتلیوں کو گنتے ہیں، 1 2 3 4 5 اور 6۔ یہاں پر 6 تتلیاں ہیں۔ چلیے پھولوں کو گنتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 اور 7۔ یہاں پر 7 پھول ہیں۔ تتلیوں کی تعداد پھولوں سے کم ہے، 6 1 کم ہے 7 سے، تو یہاں پر 1 تتلی کم ہے۔ Comparing numbers to 100۔ کس سیٹ میں کیوبز کی تعداد زیادہ ہے؟ سیٹ اے میں 6 دہائیاں اور 5 اکائیاں ہیں، یہاں 65 کیوبز ہیں۔ سیٹ بی میں 5 دہائیاں اور 8 اکائیاں ہیں، یہاں 58 کیوبز ہیں۔ ان نمبرز کا کمپیریزن دہائی میں موجود اعداد کے کمپیریزن سے کرتے ہیں۔ سیٹ اے میں 6 دہائیاں ہیں اور سیٹ بی میں 5 دہائیاں ہیں۔ 6 دہائیاں بڑی ہیں 5 دہائیوں سے، 65 بڑا ہے 58 سے، بس سیٹ اے میں کیوبز کی تعداد زیادہ ہے۔ چھوٹا نمبر معلوم کریں۔ ہم 88 اور 83 کا کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں۔ دہائی میں موجود ہندسوں کا موازنہ کرتے ہیں۔ دونوں نمبرز میں 8 دہائیاں ہیں تو ہم اکائی میں موجود ہندسوں کا موازنہ کریں گے۔ 88 میں 8 اکائیاں ہیں اور 83 میں 3 اکائیاں ہیں۔ 3 چھوٹا ہے 8 سے، لہٰذا 83 چھوٹا ہوگا 88 سے اور 83 چھوٹا نمبر ہے۔ نمبرز کو چھوٹے سے بڑے تک ترتیب دیں۔
दिहाई की जगह पर मौजूद हिंसों का मवाजना करें। 2 नंबर्स में दिहाई की तादाद 8 है और 1 नंबर में दिहाई की तादाद 7 है। 7 छोटा है 8 से, लिहाजा 79 सबसे छोटा नंबर होगा। बाकी 2 नंबर्स में इकाई के हिंसों का मवाजना करते हैं। 4 इकाइयां बड़ी हैं 2 इकाइयों से, लिहाजा 84 सबसे बड़ा नंबर है। छोटे से बड़े तक नंबर्स ये हैं 79, 82, 84। अब हम आपको इस टॉपिक से मुतल्लिक एजुकेशनल गेम या सिमुलेशन दिखाने लगे हैं। कंपेयर नंबर्स। अली एक शॉप पर फ्रूट्स लेने के लिए खड़ा है, तो उसे समझ नहीं आ रही कि इनमें से सबसे कम कीमत का फल कौन सा है। वो संतरे खरीदे या सेब। संतरे की कीमत 250 रुपए है और सेब की कीमत 300 रुपए है। आइए ये जानने के लिए एक गेम खेलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 2 साइन बोर्ड्स हैं। पहले हम सीखते हैं कि इसको कैसे खेलना या समझना है। इस डायल को घुमा के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेब यानी एप्पल किस साइड पे कम है और किस साइड पे ज़्यादा है। चलें डायल को बाएं यानी लेफ़्ट की जानिब घुमाते हैं, तो बाएं जानिब 3 सेब हैं और दाएं जानिब 2 सेब हैं। तो ये इलामत बड़े की है क्योंकि 3 सेब ज़्यादा हैं 2 सेब से। यहाँ पे दोनों तरफ सेब बराबर हैं, तो ये बराबर की इलामत को ज़ाहिर करता है। अब फिर डायल को घुमाएं, तो अब दाईं जानिब सेब ज़्यादा हैं बाएं जानिब से, तो ये छोटा यानी लेस देन की इलामत को ज़ाहिर करता है। अब स्टेप 2 पे क्लिक करते हैं। इसमें मैथमेटिकल रिलेशंस के बारे में बताया गया है। अब आपने इन सिंबल्स को उठा के इनके सही बॉक्स में रखना है। ग्रेटर के सिंबल को ग्रेटर के बॉक्स पे रखेंगे। इक्वल का सिंबल इक्वल के बॉक्स पे रखें। लेस का सिंबल लेस के बॉक्स पर रखें। आइए अब आगे चलते हैं। आइए अब इसकी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले ग्रेटर पे क्लिक करते हैं। इस बॉक्स पे क्लिक करें जिसमें अशिया की ज़्यादा तादाद मौजूद हो। 5 बॉल्स ज़्यादा हैं। जी हाँ, ये दुरुस्त जवाब है आपका। अब इस बॉक्स में बाएं जानिब 2 टॉफ़ियाँ और दाएं जानिब वाले बॉक्स में 3 टॉफ़ियाँ हैं। इसमें ज़्यादा कौन सी हैं? जी हाँ, 3 टॉफ़ियों वाला बॉक्स। जी, ये सही जवाब है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस बॉक्स पर क्लिक करें जिसमें अशिया की तादाद ज़्यादा है। जी हाँ, 3 स्टार्स वाला बॉक्स, इनकी तादाद ज़्यादा है, तो ये सही जवाब है। ग्रेट जॉब। आइए अब इक्वल को देखते हैं। इस सवाल में एक बॉक्स में 3 सेब पड़े हैं, तो इसको बराबर करने के लिए हमें नीचे दिए गई चीज़ों में से देखना होगा कि बराबर कैसे होंगे सेब। सोचिए इसमें क्या आएगा? जी हाँ, इसमें 3 बॉल्स आएंगे, तो ये बराबर हो जाएगा। बहुत खूब, आपका जवाब सही है। अब इस बॉक्स में 2 टॉफ़ियाँ हैं, तो इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा? जी हाँ, हमें 2 चाबियाँ इस बॉक्स में रखनी हैं इसको बराबर करने के लिए। वेल डन। एंड पर एक अंडा और एक टेडी बियर रह जाता है, तो ये भी इक्वल को जाहिर करते हैं। अब आगे चलते हैं। अब हम लेस के बटन पर क्लिक करते हैं। उस बॉक्स पर क्लिक करें जिसमें अशिया कम है। जी हाँ, इस बॉक्स में 2 अंडे हैं। सही जवाब। उस बॉक्स पर क्लिक करें जिसमें चाबियां कम हैं। जी हाँ, इस बॉक्स में 1 चाबी है, तो आपका जवाब सही है। उस बॉक्स पर क्लिक करें जिसमें टेडी बियर कम है। जी हाँ, इस बॉक्स में 1 टेडी बियर है। वेल डन। आपने इस गेम को अच्छे से खेला है और समझ भी गए होंगे। तो अब अली संतरे खरीदेगा क्योंकि उसकी कीमत सेब की कीमत से कम है। उम्मीद है कि आपको कंपेयरिंग नंबर का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आइए अब हम एक और सिमुलेशन को देखते हैं। ऑर्डर नंबर्स, द जिंजरब्रेड मैन गेम। आइए अब हम ऑर्डर नंबर को सीखते हैं। पहले हम छोटे से बड़े यानी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट को सीखते हैं। आइए अब इसमें 1 to 5 पे क्लिक करें। जिंजरब्रेड मैन को आपने छोटे से बड़े की तरतीब के साथ इस ट्रे में रखना है। जिंजरब्रेड मैन के बटन्स को गिने, जिसमें 1 बटन है पहले वो रखें। अब 2 बटन्स वाले को रखें। अब 3 बटन्स वाले को रखें। अब 4 बटन्स वाले को रखें और अब 5 बटन्स वाले को रखें। आइए देखते हैं कि क्या ये तरतीब सही है। जी हाँ, ऐसे हमारी तरतीब पूरी हो गई है। इसे असेंडिंग ऑर्डर यानी तरतीब सऊदी कहते हैं।
वेल डन। आइए अब बड़े से छोटे यानी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट को सीखते हैं। अब इसमें 1 से 5 तक को देखते हैं। जिंजरब्रेड मैन को आपने बड़े से छोटे की तरतीब के साथ इस ट्रे में रखना है। अब जिसमें जिंजरब्रेड मैन के बटन ज़्यादा हैं, पहले वो आएगा। जी हाँ, 5 बटन्स वाला जिंजरब्रेड मैन पहले आएगा। अब 4 बटन्स वाले जिंजरब्रेड मैन को रखते हैं। इसी तरह 3 बटन्स वाले जिंजरब्रेड मैन को रखते हैं। अब 2 बटन्स वाले जिंजरब्रेड मैन को रखते हैं और अब 1 बटन वाले जिंजरब्रेड मैन को रखते हैं। आइए चेक करते हैं कि क्या ये तरतीब ठीक है या नहीं। जी हाँ, ये तरतीब बिल्कुल ठीक है। इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर यानी तरतीब नज़ूली कहते हैं। वेल डन। उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम आपको इस टॉपिक से मुतल्लिक एजुकेशनल गेम या सिमुलेशन दिखाने लगे हैं। Pick the greater number. Great job. Pick the lesser number. Great job. Pick the greater number. Great job. Pick the lesser number. Great job. Pick the greater number. Great job. Pick the lesser number. Great job. Pick the greater number. Great job. Pick the lesser number. Great job. Pick the greater number. Great job. Pick the lesser number. आइए अब हम कुछ सवालात के जवाब सोचते हैं। इस सवाल में पूछा गया है कि ज्यादा की क्या इलामत है। सोचिए और जवाब दें। जी बिल्कुल, सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ग्रेट जॉब। अब एक और सवाल को देखते हैं। इस सवाल में पूछा गया है कि कम की क्या इलामत है। सोचिए और जवाब दें। जी बिल्कुल, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। शाबाश बच्चों। अब एक और सवाल को देखते हैं। इस सवाल में पूछा गया है 3 कम है 7 से। हम इसको किस तरह जाहिर करेंगे। सोचिए और जरा सोच समझकर जवाब दें। जी बिल्कुल सही सोचा आपने, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ग्रेट जॉब स्टूडेंट्स। अब एक और सवाल को देखते हैं। इस सवाल में पूछा गया है बराबर के लिए कौन सी इलामत इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट सोचिए और सोच समझकर जवाब दें। जी बिल्कुल सही सोचा आपने, थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। वेल डन स्टूडेंट्स। तो फिर अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ें। जी, अब हम जफ्त और ताक एदाद के टॉपिक को समझेंगे। आइए देखते हैं इस टॉपिक में क्या है। जी प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि जफ्त एदाद असल में होते क्या हैं। आइए अब वीडियो देखते हैं। आदाद की अकसाम। इवन नंबर्स ऐसे डिजिट्स जो 2 पर पूरा तकसीम हो जाएं, इवन नंबर्स कहलाते हैं। 1 से 100 तक इवन नंबर्स यहाँ दिए गए हैं। ऑड नंबर ऐसे नंबर्स जो 2 पर पूरा तकसीम ना हो, ऑड नंबर्स कहलाते हैं। हम कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जो इवन ना हो ऑड नंबर्स होते हैं। 1 से 100 के दरमियान ऑड नंबर्स यहाँ दिखाए गए हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि जफ्त एदाद असल में होते क्या हैं। एक अदद जुफ्त कहलाता है जब उस अदद के बराबर तादाद में अशियाँ यकसा तौर पर ग्रुपों में तकसीम हो जाएं और कोई शय बाकी ना बचे। यानी बच्चों, कोई भी ऐसा अदद जिनको तकसीम किया जाए और वो बराबर तकसीम हो जाए, वो तमाम अल्फाज एदाद जफ्त कहलाते हैं जिनका अकाई हिंसा 0, 2, 4, 6 या 8 हो। चलें
तो इसके मुतालिक हम हमारी टेक्स्ट बुक में दी गई मिसालों से पढ़ते हैं। आइए इसको इस मिसाल से समझते हैं। अली के पास 8 टॉफियां हैं। वो तलबा के 2 ग्रुपों में यकसा तौर पर तकसीम करता है। अब क्योंकि 8 ऐसा अदद है जो 4 और 4 के बराबर तकसीम हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि 8 एक जुफ्त अदद है। जी तो बच्चों, अब आपको इसकी समझ आ गई होगी। आइए अब हम एक और चीज़ एदाद ताक के बारे में सीखते हैं। जैसा कि हमारी किताब में इसकी डेफिनेशन दी गई है, एक अदद ताक होता है अगर उस अदद के बराबर तादाद में अशिया 2 ग्रुपों में यकसा तौर पर तकसीम की जाएं तो एक शय बच जाती है। वो तमाम एदाद ताक हैं जिनके अकाई हिस्से में 1, 3, 5, 7 या 9 हो। चलें तो इसके मुतालिक हम हमारी टेक्स्ट बुक में दी गई मिसालों से पढ़ते हैं। इसको मिसाल से समझते हैं। सना के पास 9 टॉफियां हैं और वो 2 ग्रुपों में यकसा तौर पर तकसीम करना चाहती है। सना ने टॉफियां 4 और 4 बराबर दोनों ग्रुपों में दे दी, मगर यहाँ तो इसके पास एक टॉफी बच गई, तो हम कह सकते हैं कि 9 एक ताक अदद है। देखिए बच्चों, यहाँ कुछ चीज़ें दी गई हैं और उसके साथ हमें 2 ऑप्शंस भी दी गई हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ आपको करना क्या है। तो आपने करना ये है कि हर सवाल में दी गई चीज़ को गिनना है, फिर अगर उस चीज़ की तादाद जुफ्त होगी तो आप जुफ्त के गिर्द दायरा लगाएंगे और अगर ताक होगी तो ताक के गिर्द दायरा लगाएंगे। है ना दिलचस्प भी और आसान भी। चलें अब हम इसको हल करते हैं। पहले वाले डब्बे में सेब दिए गए हैं और उनकी तादाद क्या है? जी बिल्कुल, 5 सेब हैं ये। अब आप गौर करें और बताएं ज़रा कि ये जुफ्त एदाद है या ताक एदाद? जी तो प्यारे बच्चों, ये तादाद ताक है, क्योंकि 5 को 2 और 2 बराबर तकसीम करके भी हमारे पास 1 सेब बच जाएगा। दूसरे डब्बे में 6 कप दिए गए हैं। इसको बराबर तकसीम करें तो ये 3 और 3 करके 2 बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे और कोई कप बाकी नहीं रहेगा, तो यहाँ हम जुफ्त के गिर्द दायरा लगाएंगे। तीसरे डब्बे में 4 आम हैं। बताएं ये तादाद जुफ्त है या फिर ताक? जी तो जिन बच्चों के जवाब जुफ्त हैं तो उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि आम 2 और 2 करके बराबर तकसीम हो जाएंगे और कोई आम हमारे पास बाकी नहीं बचेगा। अब चौथे डब्बे में स्याही की डब्बियां दी गई हैं जिनकी तादाद 3 है। बताएं प्यारे बच्चों, ये तादाद जुफ्त है या फिर ताक? जी बिल्कुल, इसका जवाब ताक है, क्योंकि 1 और 1 करके बराबर तकसीम हो जाएंगी और फिर एक स्याही की डब्बी बच जाएगी। अब हमारे 5वें डब्बे में हमें एक चाबी दी गई है। बताएं बच्चों, ये जुफ्त है या फिर ताक? जी, जिनके जवाब ताक हैं तो ये बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। यहाँ पहले सवाल में कहा गया है कि जुफ्त एदाद के गिर्द दायरा लगाएं और कुछ एदाद दिए गए हैं और हमें इनमें सिर्फ जुफ्त एदाद के गिर्द दायरा लगाना है। इसमें हम 20, 38, 66, 18, 4 और 80 के गिर्द दायरा लगाएंगे, क्योंकि ये जुफ्त एदाद हैं। बताएं आपने किन किन एदाद के गिर्द दायरा लगाया था? अब दूसरे सवाल में हमें कहा गया है कि ताक एदाद के गिर्द दायरा लगाएं। यहाँ बताएं आप किन एदाद के गिर्द दायरा लगाएंगे? जी बिल्कुल, यहाँ हम 17, 19, 31 और 47 के गिर्द दायरा लगाएंगे। शाबाश बच्चों, हमने ये सब हल कर लिया और आप सबने बहुत अच्छे से सीख भी लिया होगा। आइए अब हम कुछ सवालात के जवाब सोचते हैं। सबसे छोटा नंबर सबसे पहले लिखा जाता है। सोचिए और जवाब दें। जी बिल्कुल, असेंडिंग ऑर्डर में। ग्रेट जॉब। अब एक और सवाल को देखते हैं। सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिखा जाता है। जी बिल्कुल, सोचिए और जवाब दें। जी बिल्कुल, सही सोचा आपने। डिसेंडिंग ऑर्डर। शाबाश बच्चों। अब एक और सवाल को देखते हैं। 9 कौन सा नंबर है? सोचिए और जवाब दें। जी बिल्कुल, सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जी हाँ बिल्कुल, 9 एक ऑड नंबर है। शाबाश बच्चों। अब एक और सवाल को देखते हैं।
10 کون سا نمبر ہے؟ سوچئے اور جواب دیں۔ جی بالکل صحیح سوچا آپ نے، فرسٹ آپشن از اے رائٹ آپشن۔ 10 ایک ایون نمبر ہے۔ گریٹ جاب اسٹوڈنٹس۔ جی تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔